کیا سائنسدانوں نے برمودا ٹرائنگل کا معمہ حل کر لیا ہے؟ کیا برمودا ٹرائنگل ایک فرضی کہانی تھی یا واقعی کوئی پراسرار جگہ؟ یہاں جہاز کیسے تباہ اور غائب ہوتے رہے؟ کیسے ان تمام پرانے واقعات کی وجہ پتہ چل گئی؟ جانیے اس ویڈیو میں۔ برمودا ٹرائنگل کے بارے میں ہم سب نے سن رکھا ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جس سے لوگ بہت فیسینیٹ ہوتے ہیں۔ یہ میتھ ابھی بھی بہت پاپولر ہے۔ اگر آپ گریٹسٹ سائنٹیفک مسٹریز کو گوگل کریں تو برمودا ٹرائنگل ابھی بھی آپ کو سب سے اوپر نظر آتا ہے۔ یہ سمندر کے اندر ایک ایسا پراسرار علاقہ ہے جہاں سے اب تک کئی ایئر کرافٹس، شپس اور لوگ غائب ہو چکے ہیں اور ان کا کچھ پتہ نہیں مل سکا۔ یہ ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن میں ہے اور علاقے کا ایک کونا برمودا، دوسرا پورٹو ریکو اور تیسرا میامی سے جڑا ہے۔ اس کے درمیانی حصے کو برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا علاقہ ہے لیکن اس کی باؤنڈریز کوئی کلیئر نہیں ہے۔ یہ لوز سی باؤنڈری ہے لیکن جنرل ایگریمنٹ یہی ہے کہ اس ایریے کو برمودا ٹرائنگل مانا جاتا ہے۔ 5 دسمبر 1945 کو امریکن نیوی کے 5 بامبرز TBM ایونجر طیاروں نے فورٹ لوڈرڈیل فلوریڈا سے دوپہر 2:10 پر فلائی کیا۔ یہ جہاز روٹین کے ایک ایکسرسائز مشن پر تھے جسے فلائٹ 19 کا نام دیا گیا تھا۔ 320 میل کے راستے پر مشتمل اس سفر میں انہیں فلوریڈا اور پھر گرینڈ بہاماس سے ہو کر واپس آنا تھا۔ اس ٹیم کو لیڈ تجربے کار پائلٹ چارلز کیرل ٹیلر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ 12 اور پائلٹ تھے جو اس مشن میں شامل تھے۔ یہ روٹین کا فلائنگ مشن تھا اور ہر چیز نارمل تھی، لیکن اس فلائٹ کے 2 گھنٹے بعد ٹیلر نے ریڈیو کے ذریعے بیس کو میسج کیا کہ ان کو اپنی ڈائریکشن سمجھ نہیں آ رہی اور وہ مکمل طور پر کلولیس ہو گئے ہیں کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ ان کا ڈائریکشن بتانے والا ایکوپمنٹ بھی کام نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں فلوریڈا کیز کے اوپر ہوں لیکن واپسی کا روٹ ڈٹرمن نہیں کر سکتا۔ اب فلائٹ 19 کو اپنے مشن کے روٹ میں فلوریڈا کیز کے پاس جانا ہی نہیں تھا۔ اگلے 2 گھنٹوں کے دوران ٹیلر کا پھر سے کنٹرول ٹاور کو میسج ملا اور اس نے بتایا کہ اسے لگتا ہے کہ وہ گلف آف میکسیکو کے اوپر ہے، اور پھر ایک اور میسج آیا کہ ان کا فیول ختم ہو رہا ہے اور اب انہیں ڈیسیجن لینا ہے۔ یہ لاسٹ میسج تھا۔ اس کے بعد ٹیلر اور اس کی ٹیم کی طرف سے کوئی میسج نہیں آیا اور پھر یہ سب جہاز حیران کن طور پر غائب ہو گئے۔ یہ بہت حیرانی کی بات تھی کیونکہ نہ تو کوئی ایسی ویدر وارننگ تھی اور نہ ہی اس ایریے میں کوئی ایکسیڈنٹ رپورٹ ہوا۔ ان جہازوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ 5 روز بعد جب ان 5 جہازوں میں سے کسی کا بھی پتہ نہ چلا تو ان کی تلاش بند کر دی گئی۔ 5 طیاروں کا کیا ہوا کسی کو کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ ریڈیو میسیجز جو ٹیلر کی طرف سے بھیجے گئے ان سے کوئی مطلب نکالنا بہت ہی مشکل تھا۔ ایسا لگتا تھا یہ طیارے زمین کے اوپر سے غائب ہو چکے تھے۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا کہ اس علاقے میں اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آیا ہو۔ برمودا ٹرائنگل کے پانیوں سے متعلق اس سے پہلے بھی بہت سی کہانیاں تھیں۔ 1884 میں ایک تربیتی بحری جہاز HMS اٹلانٹا جو رائل نیول ڈاک یارڈ سے انگلینڈ کے شہر فال ماؤتھ کی طرف روانہ ہوا تھا، وہ اپنے پورے عملے سمیت غائب ہو گیا تھا۔ اس میں 281 لوگ تھے جن کا کچھ پتہ نہیں چلا اور نہ ہی اس جہاز کا۔ 1918 میں ایک امریکن شپ سائیکلوپس جو بارباڈوس سے روانہ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے غائب ہو گیا تھا۔ اس میں عملے کے 306 لوگ تھے جن میں سے کسی کا بھی پتہ نہ چلا، اور پھر 3 سال بعد 1921 میں یہ جہاز نارتھ کیرولائنا کے قریب ویران پڑا ہوا ملا تھا۔ فلائٹ 19 کے کچھ سال بعد ہی برمودا ٹرائنگل میں برٹش ساؤتھ امریکن ایئر ویز کے مسافر طیارے سٹار ٹائیگر اور سٹار ایریل 1948 اور 1949 میں یہاں سے غائب ہوئے اور ان کا کوئی نشان نہ ملا۔ یہ چھوٹے طیارے تھے لیکن دسمبر 1948 میں ہی ایک اور مسافر طیارہ ڈگلس DC سین ہوان اور پورٹو ریکو کے درمیان سے غائب ہو گیا۔
इस जहाज में 32 मुसाफिर थे जिनका कुछ पता न चला। ये सिर्फ वो वाकयात थे जो 1840 के बाद से रिपोर्ट हुए। यहाँ जहाज़ों के गायब होने का मामला इससे भी पुराना था। कई सदियां पहले जब क्रिस्टोफर कोलंबस अमेरिका दरियाफ्त करता इस इलाके के करीब पहुंचा था तो उसने जो कुछ देखा वो हैरान कुन था। वो अपनी डायरी में लिखता है कि एक रात यहाँ मैंने अजीब सी रोशनी देखी जैसे कोई आग का गोला हो और वो समुंदर में गिर रहा है। और फिर उसके डायरेक्शन बताने वाले आलात ने काम छोड़ दिया। बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले इन वाकयात का सबसे पहले जिक्र एडवर्ड वॉन विंकल ने मायामी हेरल्ड के एक आर्टिकल में किया था जो 17 सितंबर 1950 को शाया हुआ। इसके 2 साल बाद फेट मैगजीन ने एक आर्टिकल शाया किया जिसका नाम था सी मिस्ट्री एट आवर बैकयार्ड, जो जॉर्ज एक्स सैंड नामी शख्स ने लिखा था। उसने इस आर्टिकल में दूसरी जंग अजीम के बाद इस इलाके से गायब होने वाले जहाज़ों के बारे में लिखा, जिसमें फ्लाइट 19 का जिक्र भी शामिल था और कहा गया कुछ तो गड़बड़ है। यही वो मजमून था जिसमें पहली मर्तबा एक मखसूस ट्रायंगल का जिक्र किया गया जहां ये वाकयात हो रहे थे। फ्लाइट 19 के बारे में एक और आर्टिकल अप्रैल 1962 में अमेरिकन लीजन मैगजीन में एलन एकर्ट ने लिखा, जो फ्लाइट 19 के पायलट चार्ल्स टेलर के हैरानकुन मैसेजेस के बारे में था। इस आर्टिकल में एलन एकर्ट ने बताया कि इस परवाज के लीड पायलट के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे, हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता हम कहाँ पर हैं और पानी सब्ज है। उसने ये भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े की इंक्वायरी की उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये जहाज़ मार्स की तरफ उड़ गए। लेकिन इसके बाद 1964 में विंसेंट गेडिस का वो आर्टिकल आया जिसका टाइटल था द डेडली बरमूदा ट्रायंगल, जिसमें फ्लाइट 19 और फिर 1840 से गायब होने वाले इन जहाज़ों का जिक्र था। ये पहली मर्तबा था जब इस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल का नाम दिया गया और 1 साल बाद उसने इसी आर्टिकल पर बेस करके एक किताब भी लिखी जिसका नाम था इनविजिबल होराइजन्स। इस आर्टिकल और किताब की शोहरत के बाद बरमूदा ट्रायंगल का नाम घर घर पहुंच गया और यूं बरमूदा ट्रायंगल अब एक ऐसा मिथ बन गया था जिसने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ कर ली। एक ऐसा इलाका जहां जाने वालों का कुछ पता नहीं चलता और बड़े बड़े जहाज गायब हो जाते हैं। बरमूदा में अभी तक गायब होने वाले जहाज़ों की असल तादाद किसी को मालूम नहीं। एक अंदाज़ा है कि यहाँ तकरीबन 50 सी शिप्स और 20 एयरक्राफ्ट्स गायब हुए हैं। 1970s और 1980s में बरमूदा ट्रायंगल लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो गया और ये पॉप कल्चर का भी हिस्सा बन गया। 1977 में टीवी सीरीज द फैंटास्टिक जर्नी में एक फैमिली के सफ़र की कहानी बताई जाती है जिनका जहाज़ सब्ज बादलों की लपेट में आ जाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां वक्त के धारे आपस में टकराते हैं और आपस में मिल जाते हैं, जैसे एक टाइम लैप्स होता है। इससे पहले 1974 में विंसेंट प्राइस ने द डेविल्स ट्रायंगल के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जिसमें प्रोड्यूसर को जो भी वाकयात मिले वो सब इसमें डाल दिए। इसके बाद स्कूबी डू से लेकर वंडर वुमन जैसी टीवी सीरीज के तमाम मशहूर कैरेक्टर्स अपनी फर्जी कहानियों में बरमूदा ट्रायंगल पहुंचते रहे। इसके बाद एक बोर्ड गेम और एक अटारी वीडियो गेम भी इस पर आई, यहाँ तक कि पॉप म्यूजिक में इस टाइटल के साथ गाने और ट्रैक्स रिलीज हुए। 1974 में चार्ल्स बर्लिट्ज ने एक किताब द बरमूदा ट्रायंगल शाया की जो एक बेस्ट सेलर किताब बन गई। बर्लिट्ज ने इस सारे मामले को गुमशुदा शहर एटलांटिस और उसकी टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया। वो यूएफओज और उस थ्योरी को सपोर्ट करता था कि एलियंस किसी ज़माने में यहाँ ज़मीन पर आए थे। लेकिन ये किताबें इन्हीं सालों में शाया हुई जब ये कॉन्सेप्ट्स बहुत पॉपुलर हो रहे थे। 1977 में यूएफओ क्रिश्चियन कल्ट हेवन गेट की भी बुनियाद रखी गई, लिहाजा एक कल्चर और कंस्पिरेसी थ्योरीज पहले से मौजूद थी। इन तमाम लोगों का सवाल था कि ये सब वाकयात यहाँ बरमूदा ट्रायंगल में ही क्यों हो रहे हैं। ये दोनों तरह के एयरक्राफ्ट्स और सी शिप्स कहाँ जाते हैं, इनके नेविगेशनल आलात काम करना क्यों छोड़ जाते हैं, अमले का पता क्यों नहीं चलता और इन जहाज़ों का मलबा कहाँ जाता है। यहीं से इस ट्रायंगल में एलियंस की मौजूदगी की थ्योरी ज़्यादा जोर पकड़ गई। कहीं कहा गया कि खोए हुए शहर एटलांटिस की टेक्नोलॉजी इसकी जिम्मेदार है। कुछ ने इसकी वजह बिमनी रॉक्स को कहा जो एक रॉक फॉर्मेशन है और ट्रायंगल की शेप की होती हैं, और कहा गया कि ये रॉक्स जहाज़ों को खींच लेती हैं। कुछ ने कहा यहाँ एक पैरेलल यूनिवर्स है और दूसरी दुनिया में जाने का ये एक रास्ता है।
कुछ ने इसे यूएफओस के साथ जोड़ दिया। इन दावों के साथ ये भी इंटरेस्टिंग है कि गुज़िश्ता कुछ सालों में ऐसे मज़ामीन इस्लामी दुनिया में भी लिखे गए हैं और इनमें से कई इंटरनेट पर भी मौजूद हैं जिनमें ये दावा किया गया है कि बरमूदा ट्रायंगल में दज्जाल मौजूद है और वो सामने आने से पहले यहाँ अपनी ताकत बढ़ा रहा है और एक मखसूस मौके पर सामने आएगा। तहम अब एक ऑस्ट्रेलियन साइंसदान ने बरमूदा ट्रायंगल का मुअम्मा हल करने का दावा किया है। ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखने वाले कार्ल क्रोसचेल-निक्स्की का कहना है कि बरमूदा ट्रायंगल में तैयारों और कश्तियों की पुरस्रार गुमशुदगी के पीछे कोई सुपरनैचुरल चीज़ नहीं। उसका ख्याल है कि ये वाक़यात मुमकिना तौर पर ख़राब मौसम और ह्यूमन एरर का नतीजा थे। इससे पहले भी उसने 2017 में ये दावा किया था कि ये इलाका इक्वेटर के करीब है, इसलिए यहाँ ट्रैफिक बहुत है और बरमूदा ट्रायंगल में गुमशुदगियों की तादाद दुनिया में कहीं गुमशुदा होने वाले जहाज़ों की तादाद के बराबर है। इसके अलावा कार्ल ने इस रिसर्च में फ्लाइट 19 का भी जिक्र किया, जो बरमूदा ट्रायंगल की तमाम गुमशुदगियों में सबसे ज़्यादा मशहूर है। कार्ल का ख्याल है कि फ्लाइट 19 उस दिन अटलांटिक में 15 मीटर बुलंद लहरों की वजह से हादसे का शिकार हुई और फिर यह जहाज़ नहीं मिले। उसका अंदाज़ा यह है कि परवाज़ में वाहिद तजर्बेकार पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर था और ह्यूमन एरर भी इसकी रीज़न हो सकती है। इससे पहले 2010 में भी अमेरिका के नेशनल ओशियानिक और एटमॉस्फेरिक एसोसिएशन ने यह कहा था कि डेटा इसी थ्योरी को बैक करता है। उनका भी मानना है कि यहाँ कोई एलियन नहीं और ना ही कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है, बल्कि ये सिर्फ एक्सीडेंट्स से यहाँ मौसम ज़रूर अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और कैरिबियन के दीगर आइलैंड्स की तरह यहाँ नेविगेशन एक मुश्किल काम है, लेकिन इन एक्सीडेंट्स की तादाद गैर मामूली नहीं है। अमेरिकन कोस्ट गार्ड भी इसी थियरी की तस्दीक करते हैं। फिर पिछले कुछ सालों में खोए हुए जहाज़ों का कुछ मलबा भी मिलना शुरू हो गया। 2020 में बरमूदा ट्रायंगल में 100 साल पहले गायब होने वाले जहाज़ का मलबा फ्लोरिडा के पास समुंदर से मिला। 1925 में ये अमेरिकन जहाज़ SS कोटोपिक्सी बरमूदा ट्रायंगल में गायब हो गया था। इस जहाज़ में 32 मुसाफिर थे जिनका बहुत तलाश के बाद कुछ पता न चला और ना ही इसका मलबा मिला, लेकिन फिर फ्लोरिडा के शहर सेंट ऑगस्टीन के पास से इसका मलबा मिला और इसकी तस्दीक हुई। लॉरेंस डेविड कोशे ने 1975 में एक किताब लिखी, द बरमूदा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड, जो इस मिस्ट्री को सॉल्व तो नहीं करती, लेकिन इस ट्रायंगल को साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने की पहली कोशिश थी। उसने भी फ्लाइट 19 से मुतालिक इस तमाम मिस्ट्री को रद्द करते हुए कहा कि इन तैयारों का ईंधन खत्म हो गया था और अमला अपने हवाई जहाज़ों के डूबने से पहले सेफ्टी बोट्स में सवार नहीं हो सका। उसने बहुत से वाक़यात की तारीखों को निकाल कर उन्हीं दिनों में मौसम के हालात की खबरें निकाल कर ये साबित करने की कोशिश की कि मौसम की खराबी की वजह से ये वाक़यात हुए थे। कोशे ने बताया कि जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के वाक़यात में कई जगह चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया। मसलन 3 दिन तक एक जहाज़ अटलांटिक पोर्ट से गायब होने का वाक़या ज़रूर पेश आया, लेकिन पैसिफिक ओशन में ये वाक़या सनसनी फैलाने के लिए बिला वजह इस ट्रायंगल से जोड़ दिया गया। इसी तरह जहाज़ों और कश्तियों के गायब होने के कई वाक़यात ऐसे थे जो किताबों और आर्टिकल्स में लिखे गए लेकिन हकीकत में पेश ही नहीं आए। लिहाजा कुछ वाक़यात जो बरमूदा ट्रायंगल से जोड़े गए वो सिरे से हुए ही नहीं थे और ये सब बनी बनाई बातें थी। और कई मरतबा ऐसा हुआ कि वाक़यात पेश तो आए लेकिन कश्तियाँ बाद में मिल गई और गुमशुदगी रिपोर्ट हुई, लेकिन वापस मिल जाने की खबरों को नज़रअंदाज कर दिया गया। इसके अलावा बरमूदा ट्रायंगल में होने वाले वाक़यात के हवाले से कुछ एक्सप्लेनेशंस ऐसी हैं जो साइंसी एतबार से मुमकिनात में शामिल हैं और इन वाक़यात को नेचुरल पॉसिबिलिटीज़ कहा जा सकता है। एक तो रास्तों के खो जाने और फिर रास्ता बताने वाले आलात के काम ना करने के यहाँ काफ़ी वाक़यात का जिक्र हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऐसा होता है। एक थ्योरी ये भी है कि कई पायलट्स यहाँ एगोनिक लाइन का अंदाज़ा लगाने में नाकाम रहे हैं। एगोनिक लाइन असल में ज़मीन के गिर्द एक इमेजिनरी लाइन समझी जाती है और ज़मीन के नॉर्थ और साउथ पोल इस पर अलाइन होते हैं, जिस पर ज़ीरो डिक्लिनेशन होती है। जब ऐसा होता है तो फिर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही पोजीशन पर आ जाता है और कॉम्पस की मैग्नेटिक वेरिएशन को अलाइन करने की ज़रूरत नहीं रहती।
मैग्नेटिक कॉम्पस का नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक ही जगह जहां मिलते हैं, वहां ये आलात ठीक तरह से काम नहीं करते या काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे में कोई भी कैलकुलेशन गलत हो सकती है और इस वजह से जहाज ना सिर्फ अपना रास्ता खो सकता है बल्कि हादसे का शिकार भी हो सकता है। ये लाइन कई मर्तबा बरमूदा ट्रायंगल से गुजरती है और डेटा बताता है कि 20वीं सदी के शुरू में कई मर्तबा ऐसा हुआ और ये चीज़ जहाज़ों के हादसात या उनके आलात के काम छोड़ जाने की वजह भी हो सकती है। दूसरी वजह इन वाक़यात की गल्फ स्ट्रीम हो सकती है, जिसे फ्लोरिडा करंट भी कहा जाता है। ये पानी की थर्मलीन सर्कुलेशन होती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में अक्सर ओरिजिनेट करती है। इसकी वजह से समुद्र के अंदर दरिया जैसी एक लहर बन जाती है जो किसी भी जहाज को उसकी जगह से उठाकर कहीं ले जा सकती है या उल्टा सकती है। ये एक ऐसी ऑकरेंस है जो किसी भी जहाज के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है और इसे मिनटों में गायब कर सकती है। कुछ लोगों का ख्याल है कि इस इलाके में बहुत से मेथीन हाइड्रेंट्स हैं। ये गैस की तरह के ज़खायर होते हैं और समुद्र की तह से ये गैस खारिज होती रहती है। इसकी वजह से बड़े बड़े बबल्स बन जाते हैं जिनको मड वोल्केनोज कहा जाता है और तहकीक में ये बात साबित हुई है कि इस तरह के बबल्स बड़े शिप्स को भी डबो सकते हैं। अगर इस इलाके में कहीं ऐसा होता तो फिर ये किसी भी शिप को विदाउट वार्निंग फौरी डबो सकते हैं। नॉर्वे की आर्कटिक यूनिवर्सिटी ने भी एक रिसर्च में यही थ्योरी पेश की थी कि समुद्री तह में मौजूद मेथीन या कुदरती गैस की मौजूदगी इस मुहिम्मे के पीछे हो सकती है। USGS ने इस इलाके में एक रिज के साथ इन डिपॉजिट्स का अंदाजा भी लगाया है, लेकिन बरमूदा ट्रायंगल वाले एरिया में पिछले 15,000 साल में ऐसे बबल्स नहीं देखे गए, लिहाजा ये अभी एक अंदाजा ही है। फिर हादसात इंसानी गलती की वजह से भी होते हैं और ऐसा नहीं कि यहाँ कभी किसी ने कोई गलती ही ना की हो। कई वाक़यात का जिम्मेदार इंसानी गलती भी यकीनन होगी, जैसा कि फ्लाइट 19 के बारे में काल ने कहा था। जो लोग समुंदर में इस इलाके में रहते हैं वो भी इस इलाके को खासा ख़तरनाक समझते हैं, लेकिन एलियंस या शैतानी कुव्वतों की वजह से नहीं बल्कि यहाँ के वेदर और टेरेन की वजह से, क्योंकि यहाँ तूफ़ानों का आना मामूल की बात है और अक्सर बहुत बुलंद लहरें होती हैं जिनकी ऊंचाई 30 मीटर यानी 100 फीट तक जा सकती है। और ऐसे कई तूफ़ानों का जिक्र इस समुंदर की तारीख में मिलता है जब जहाज़ इस तरह के तूफ़ानों में तबाह हुए। बरमूदा ट्रायंगल 3 रियासतों मायामी, बरमूदा और पोर्टोरिको के दरमियान में है, जहां मुख्तलिफ डायरेक्शन से आने वाले तूफान एक जगह कन्वर्ज भी कर सकते हैं और रोग वेव्स बन सकती हैं। 2018 में बरतानिया की साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी के साइंसदानों का ख्याल था कि इसकी वजह वहां की 100 फीट बुलंद तेज लहरें हो सकती हैं। उनके मुताबिक इस ट्रायंगल में 3 मुख्तलिफ इतराफ से शदीद तूफान आ सकते हैं जो किसी बहुत बड़ी लहर को बनाने के लिए एक परफेक्ट कंडीशंस फराहम करते हैं। फिर समुद्री तूफानों को प्रेडिक्ट करने वाले आलात भी काफ़ी रीसेंट एडवांसमेंट है, लिहाजा इन तूफानों के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और माजी में अगर यहाँ मामूल से कुछ ज़्यादा जहाज़ गायब हुए हैं तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं, लेकिन 2013 में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने जहाज़रानी के लिए दुनिया के 10 ख़तरनाक तरीन पानियों की एक लिस्ट बनाई। ये लिस्ट इस बुनियाद पर बनाई गई कि किन इलाकों में बहरी जहाज़ों को सबसे ज़्यादा हादसात पेश आए। इन 10 इलाकों की लिस्ट में बरमूदा ट्रायंगल शामिल नहीं था। जब बरमूदा ट्रायंगल का बुखार अरूज पर था तो उस वक्त शिपिंग और एयर ट्रैफिक के रास्ते देखने के तरीके अभी इतने एडवांस नहीं थे जैसा कि आज हमारे पास GPS टेक्नोलॉजी है। चंद मिनट के अंदर अंदर आपका अपना मोबाइल फ़ोन आपको दुरुस्त डायरेक्शन में डाल सकता है और इस तमाम टेक्नोलॉजी के बावजूद भी जहाज़ गायब होते हैं और कई मरतबा उनका पता नहीं चलता। मलेशियन एयरलाइन की फ़्लाइट 370 को ही लें जो 2014 में कुआलालंपुर और बीजिंग के दरमियान कहीं गुम गई और उसका पता नहीं चला। लिहाजा जहाज़ों का यूं गायब होना कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं, लेकिन अब हम इसका जिक्र कम सुनते हैं। कम ही देखा है, कम ही पढ़ा है कि कोई जहाज़ इस इलाके में गायब हो गया। तो क्या इसकी वजह यह है कि एलियंस ने या एटलांटियंस ने हमारे तैयारों और कश्तियों को चोरी करना छोड़ दिया है या फिर कुछ और हुआ है? हकीकत तो यह है कि आज बरमूदा ट्रायंगल दुनिया की सबसे मसरूफ़ शिपिंग लेन्स में से एक है और यहाँ हवाई जहाज़ों के गुजरने पर भी कोई पाबंदी नहीं। हर रोज़ जहाज़ यहाँ से गुजरते हैं और ये दुनिया के बिजी तरीन रूट्स में से एक है। कार्ल सेगान ने कहा था कि साइंस अंधेरे में कैंडल लाइट की तरह है, लेकिन सोचने का साइंटिफिक वे आपका खौफ कम कर देता है।
क्या आपको अभी भी लगता है कि बरमूदा ट्रायंगल में कोई पुरस्रार बात है, या फिर आप ये तहकीक मानते हैं कि इन वाक़यात के पीछे कोई एलियन नहीं, ये सिर्फ एक्सीडेंट से? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकॉन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।